Now today let's start with chapter number 2, sorting materials into groups. In this chapter we will study about the classification of object. I will classify different objects, matter and properties of mineral. We will see some properties of the minerals. Now let's start the chapter. We can see numerous things around us like bullock carts, chair, cooking utensils, cycle, clothes, books, water toys, stones and many other objects. All these objects have different shape and size, color, and we can classify these objects according to their different features. Like classification of object, the process of grouping object based on some known criteria called classification. There are various ways in which object can be classified, but before we learn more about the classification of the object, we will understand the nature and its constituents. इससे nature और constituents को समझेंगे. Like importance of classification. Why classification is very important? Because grouping things make it easy to study their properties. We can locate them easily. It becomes convenient for us to learn any pattern in their properties. Next is it makes our work easier and wastage of time is avoided. इससे क्या होता है कि एक तो हमारा काम इजी हो जाता है और जो टाइम की वेस्टेज है वो नहीं होती है. इट हेल्प्स टू सेग्रीगेट सिमिलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट वन. भाई हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स. नाउ व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ? ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, वुड के, प्लास्टिक के, ग्लास के. नाउ ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल लाइक ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, लेदर, पेपर एंड न्यू. कर्टेन्स आर मेड अप ऑफ क्लोथ. टेबल किसकी बनती है? वुड की. वहीं अगर हम बैग्स की बात करें तो वो लेदर के बनते हैं. पेयर ऑफ स्लीपर्स रबर की बनती है. फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मटेरियल आर रिक्वायर्ड. अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको कॉम्बिनेशन करना है डिफरेंट मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, टू मेक अ बाइसाइकिल यू नीड मेटल, रबर, प्लास्टिक, लेदर. On the contrary, material of different kind are also used to make the same object. A ball can be made of rubber, plastic or leather. Single object like tumbler can be made from plastic, glass or metal. आप टम्बलर को बना सकते हैं प्लास्टिक से, ग्लास से और मेटल से. What we can also use same material for making different objects. Glass can be used for making crockery, spectacles या विंडो बना सकते हो. क्लोथ्स का यूज कर सकते हो, बैट कवर्स, कर्टेन, गारमेंट्स बनाने के. तो we have different. Now check your progress. Write the example of object made from given material listed in the table. You have to read आपके मटेरियल दिया, ऑब्जेक्ट जो इनसे बनते हैं वो आपको खुद लिखना. नेक्स्ट इज मैटर. एनीथिंग that occupies space and has mass is known as matter. Now, in our daily life, we came across various kind of material. All material are made up of matter. What is matter? Anything that occupies space and have mass is known as matter. All solid, liquid and gas around us is made up of matter. And scientists also believe that matter is made up of tiny particles clumped together. You can see these particles, but you cannot see the matter. आप particles को तो देख सकते हैं, लेकिन जिसका matter है वो आप नहीं देख सकते. Think and add few more examples from a day-to-day life. When we see matter, it means matter has weight. Heavier object, more mass it has. Matter occupies space, which means matter has volume. A substance is a pure kind of matter. जिसपे आपका we have only one kind of constituent particles. Water, iron, gold, copper, aluminium, oxygen ये आपके substances के एग्जाम्पल है. और जितने भी सब्सटेंसेज है वो आपके किसके बने हैं? मेटर के बने. दे आर मेड अप ऑफ मेटर. दे आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेज बट मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस. ऐसा नहीं है खाली एक ही सिंगल सब्सटेंसेस के बने हैं, मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. एन ऑब्जेक्ट इज यूजफुल फॉर द पर्पस इट इज बीइंग यूज्ड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इट इज मेड अप. लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, अलाउ करती है लाइट को कि वो पास करे किसके थ्रू? मटेरियल विदाउट बीइंग स्कैटर. बिना फैले वो क्या करे? पास करे. इसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. ठीक है, if almost all light can pass through an object, it is called transparent. We can see through a transparent material. If no light can pass it is called opaque. आप इजिली देख सकते हो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से
और अगर लाइट पास नहीं कर पा रही है तो कैसा मटेरियल, ओपेक है, ठीक है। वी कैन नॉट सी थ्रू an opaque material. It is light and can be partially, it is translucent. We cannot see through a translucent material. जो translucent material होता है उससे आप देख नहीं सकते। Now ट्रांसपेरेंट में आपका कौन कौन सा आ जाता है, ग्लास, स्किन, वाटर एंड एयर। देन वी हैव ओपेक जिसमें आपका कार्डबोर्ड, मिल्क और ब्रोमाइन आ जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट जैसे फोस्टेड ग्लास या फिर ट्यूबेड वाटर आता है, इससे लाइट पास नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज योर अपीयरेंस और लस्टर। We can classify object by looking at them. If you are given a piece of silk fiber and a piece of woolen cloth, क्या आप उसके अपीयरेंस को डिफरेंशिएट कर सकते हो? यस, सिल्क थोड़ा शाइनी होगा, ये कम शाइनी होगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ्टन आइडेंटिफाई इट्स अपीयरेंस, ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी शाइनी। द शाइनी और लस्टर इज नॉट सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो लस्ट्रस होता है, जिसमें शाइन होती है, वो लस्ट्रस ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक योर गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। And non-lustrous like your wood and rubber, they do not have shine, उनके वन का शाइन नहीं हो। Now object can also be identified as rough or smooth on the basis of texture. Appearance or consistency of the object is called texture. जो appearance और consistency है उसे क्या बोला जाता है, texture बोला जाता है। For example, bark of tree is rough, petals of flower and leaves are soft. जूट इज रफ whereas रबर गवर्नमेंट इज स्मूथ, और जो रबर है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। यू फाइंड मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू, यू मस्ट हैव टच देम। आर दे ऑल सेम और टच? कंपेयर अ पीस ऑफ रॉक और अ स्प्रेड, विच वन कैन यू कंप्रेस? आप इजिली किसको कंप्रेस कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते। देर आर सम मटेरियल लाइक आयरन, रॉक, वुड, दे आर हार्ड टू टच और हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंप्रेस देम। एंड लाइक स्पॉन्ज, कॉटन, दे आर टच एंड बहुत सॉफ्ट होते हैं टच करने में और उसको आप इजिली कंप्रेस कर सकते। The material that can be compressed are soft and material cannot be compressed, they are hard. So by touching the hardness of the or softness of the material, we can tell that a material which can be compressed or which cannot be compressed. Hard cannot be compressed and soft can be compressed. Solubility in water. This is also a distinguished property of matter. It is the capability कि जो water है वो कितनी जल्दी अपना dissolve हो रहा है solvent. This is sugar dissolve in water. Another physical property of substance describe how well substance dissolve in another substance. Dissolving is the physical process. If substance dissolve, the substance is soluble. अगर substance dissolve हो रहा है तो वो soluble है, अगर dissolve नहीं हो रहा है वो कैसा है, insoluble. It is insoluble. अब जैसे कुछ liquids हैं like alcohol, vinegar, lemon juice and milk which dissolve when mixed with water. इनको हम miscible liquid है, ठीक है। जो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं वो मिसेबल और जो मिक्स नहीं होते वो इमिसेबल लिक्विड होते हैं, राइट। लाइक लिक्विड लाइक केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट, कोकोनट एंड पेट्रोल, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये इन लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, इमिसेबल लिक्विड्स। आपको याद रखना लिक्विड्स दो टाइप के होते हैं, मिसेबल और इमिसेबल। मिसेबल जो डिसॉल्व हो जाता है, इमिसेबल जो डिसॉल्व नहीं, मिक्स नहीं होगी। Some gases like oxygen, carbon dioxide are soluble in water. Ammonia is a gas that is very soft. आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, they are insoluble in water. In each state, some material are soluble in water, whereas some are other than insoluble. Therefore, they can be classified on the basis of their solubility. आप इनको classify कर सकते हो किसमें, on the basis of their solubility in water. Now activity. Now I will tell you about how some liquids in water soluble. For this activity, we will need a small quantity of milk. थोड़ा सा आपको मिल्क चाहिए, विनेगर, घी, अल्कोहल, केरोसिन, ग्लास, टम्बलर एंड अ स्टर। आप क्या लेंगे, आप 6 ग्लास टम्बलर लेंगे, ठीक है। हाफ फिल विद टम्बलर विद वाटर। आप 2 टेबलस्पून लिक्विड डालेंगे इन ईच ग्लास टम्बलर। हर एक तरीके के लिक्विड को उसको अच्छे से क्या करेंगे, मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो मिल्क है वो वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, विनेगर कुछ भी नहीं होगा, घी में ये भी मिक्स नहीं है, ठीक है।
कंक्लूजन क्या होगा? मिल्क, विनेगर, अल्कोहल मिक्स विद वाटर, ठीक है, एंड बाय घी, केरोसिन एंड कोकोनट ऑयल दे डू नॉट, दे फॉर्म सेपरेट लेयर विद वाटर। जैसे ही जब उसको आप क्या करोगे, अनडिस्टर्ब रखोगे पर सम टाइम, देखा ना, आपको दिखने लग जाता है ऐसे तेल सा ऊपर ऊपर तैरता। डेंसिटी मतलब फ्लोटिंग और सिंकिंग, कितना फ्लोट करता है, कितना सिंक करता है। डेंसिटी क्या होता है? इट इज अ मास कंटेन इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। नाउ दिस इज द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अब आपको इसमें एक टब लेना है फुल ऑफ वाटर एंड प्लेस अ पीस ऑफ फ्रूट एंड देन अ पीस ऑफ स्टोन, सेम साइज के लेने हैं और दोनों को उस टब में डालें। आप क्या नोटिस करेंगे? What you will notice that the piece of wood floats on the surface of the water, whereas जो piece of stone है वो sink हो जाता है। पर वो होता क्यों है? Why this happen? I will tell you why this happen, because wood is lighter and stone is थोड़ा कहता है heavier, ठीक है, because it is lighter than water, wood floats on water because it is lighter than water, and stone sink because it is heavier than water। भाई वुड तो क्या है, पानी से लाइटर है, लेकिन स्टोन जो है वो भारी है पानी। एंड हैंस मटेरियल दैट आर लेस डेंस देन वाटर फ्लोट्स इन वाटर, और जो डेंसर होते हैं देन वाटर वो सिंक कर, ठीक है, जो लेस डेंस होंगे वो फ्लोट करेंगे और जो ज्यादा डेंसर होते हैं वो सिंक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ हीट। Conduction is the transfer of heat by the means of molecular agitation within a material without any motion. If one end of the metal rod is higher temperature, the energy will be transferred down the rod towards the colder end, ठीक है। क्या होगी? ठंडे की तरफ जाएगी और जो हायर स्पीड पार्टिकल्स है वो कोलाइड करेंगे विद स्लोअर, और जो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो क्या होगी? वो स्लोअर हो जाएगी। एंड मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम इन विच हीट फ्लोज क्विकली, दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड मटेरियल लाइक वुड इन विच हीट फ्लोज स्लोली, वो स्लोली फ्लो करते हैं, दे आर कॉल्ड बेड कंडक्टर ऑफ हीट। Now physical state, a state of matter. It also helps us to identify an object. An object may be solid, liquid and gas. सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, इट्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर और डेफिनेट वॉल्यूम। गैस इट्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, और जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि भाई स्पेस होती ही नहीं है। दैट इज वाई सॉलिड आर हार्ड टू टच। इन लिक्विड्स जो मॉलिक्यूल्स है वो लूजली पैक्ड होते हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो इजिली मूव करते हैं और स्लाइड, and they can flow. In gases, molecules are loosely packed. Intermolecular attraction between the particle is weak. और जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स का यूजुअली मच ग्रेटर होता है, एज दे आर इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। वो कांस्टेंट होता है, रैंडम मोशन। नाउ दिस इज द एक्टिविटी, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। नाउ आई विल क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट लाइक गोल्ड, बुल, लैमनॉइड, ऑक्सीजन, सैंडपेपर, रबर, मिल्क एंड वाटर। आपको इनको करना है, क्लासिफाई करना। इट्स एक्टिविटी, यू हैव टू डू इट। Then afterward, you will check your progress, what you have understood in this chapter. Now our chapter has been completed. That's all for today. Thank you.